Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're going to start with the algebra, and today we're going to discuss indices and surds part 1. So let's start with the indices. Indices is plural form of your index, and index you already know. Let me just explain with the help of example. So suppose this is 2 to the power 5. So 5 is known as 5 is called power, index or exponent. 5 is called power, index or exponent. So these are the three terms that are used interchangeably. You can say it index or you can say it power or exponent. Power is a very often word that we use. So let me just explain this also. So suppose you write 2 into 2, like same number is written multiple times in multiplication. So that can be represented at this also. This way this can be represented. In the next slide we'll also see like this is basically your law of indices also. So that we'll see. But this can be represented like this, and 4 will be your power, index or exponent, and 2 is your base. Okay, so now let's see what are the law of indices. So these are the very basic laws of your mathematics. You have used it very often, be it any math, be it arithmetic, be it numbers, be it algebra, geometry. You have used it multiple times. So let me just go through one by one. So let's see the first rule. First rule, a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n. So what is basically, when your base is same, जब तुम्हारा base same होगा, then in multiplication you can add your powers. Let me explain with the example. So this is 2 to the power 3 into 2 to the power 2. So this you can do 2 to the power 3 plus 2. That is 2 to the power 4. So when your base is same, then you can add your powers in multiplication. Multiplications में power add कर सकते हो जब तुम्हारा base same है. ओके यहीं पर सेकंड समझो, सेकंड बट कंडीशन क्या थी, बेस सेम होना चाहिए. अगर तुम्हारा बेस सेम है तो इन डिवीजन यू विल सब्ट्रैक्ट, इन डिवीजन यू विल सब्ट्रैक्ट, यू विल डू दिस थिंग. एंड सब्ट्रैक्शन योर लाइक जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा दैट विल कम एज अ नेगेटिव, दैट विल कम एज अ विद नेगेटिव साइन, वो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ पावर में. ठीक है, ओके. Now let's see this one. इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. a to the power m to the power n, a to the power m का होल to the power n, this is equal to a to the power m into n. ये मल्टीप्लीकेशन में होता है. ठीक है, ये जो तुम्हारा है इसको केयरफुली देखो, ये मैं यहां पे लिख देता हूं a to the power m to the power n. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, जिसमें m टू द पावर n होता है. ये दोनों चीजें अलग हैं. ब्रैकेट जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये यहाँ पर m की पावर n है. एग्जाम्पल से अगर देखें तो लाइक दिस इज 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, वेयर दिस इज 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2. फाइन. तो ये देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा 36, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 9, दैट इज 512. So these are different. So like see remember this thing very carefully. ये often जल्दबाजी में हमसे mistake हो जाती है. ठीक है, so I hope these three laws are clear, first, second and third. So this is the fourth one, very simple, and on this question has been asked in the CAT. Recent I think 2 questions have come in the CAT from this. a to the power 0 equals to 1. और उन क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है प्रीवियस ईयर के, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया मैं ऐड कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट में. सो मेक श्योर वॉच दैट. a टू द पावर 0, कोई भी तुम्हारा नंबर हो उसका पावर जो होगा अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ a टू द पावर माइनस m अगर तुम्हारा है, सो इफ यू ब्रिंग इट डाउन, अगर तुम इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. तो अगर सपोज पावर a टू द पावर m है और इसको तुम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओगे तो a टू द पावर माइनस m हो जाएगा. ओके, सो दिस इज आगे हम सर्ट्स पढ़ेंगे है ना, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. a टू द पावर 1 बाई m अगर लिखा हुआ है तो दिस कैन बी रिटन एज दिस. इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज दिस इज रिटन 2 टू द पावर 1 बाई 3, सो यू कैन राइट इट 2, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2. इसमें देखो अगर सपोज 2 इंटू 3, लास्ट वाला रूल में डिस्कस करो, टू द पावर
लेट्स से 2 लिखा हुआ है, सो यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स, तुम ऐसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, डजेंट मैटर बेस सेम है या नहीं। अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की, लाइक यहाँ पर बेस सेम हो रहे थे, यहाँ पर बेस सेम होने की जरूरत नहीं, यू कैन ओपन इट इंडिविजुअली, है ना, इसको इंडिविजुअली तुम ओपन कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, दिस आर द लाइक वेरी बेसिक रूल्स दैट वी यूज वेरी ऑफन। यहाँ पर जिस मिस्टेक होती है, ये जो मैंने बताया, ये कंफ्यूजन होता है, तो जल्दबाजी में ये मिस्टेक मत करना, बाकी ऑल अदर्स आर वेरी सिंपल बेसिक रूल्स, ठीक है, बाकी सारे सिंपल से रूल हैं जो हम डेली यूज करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 11 to the power x minus y equals to this, and 11x plus y equals to 1331. So you know this is 11 square and you know this is 11 cube. So x minus y equals to 2 here, x plus 3, x plus y equals to 3, ठीक है। अगर देखो दोनों के बेस सेम है तो बेस को तुम कैंसिल कर सकते हो, दोनों के बेस सेम है तो बेस को हम कैंसिल कर देंगे, या फिर ये कह लो लॉग ले लेंगे। तो लॉग जब हम आगे डिस्कस करेंगे उसको अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बेस सेम है तो पावर को बेसिकली कंपेयर कर सकते हो, सिंपल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये होता क्या है कि लॉग से कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट हमें ऐसे कैंसिल नहीं करना, हमें क्या करना है, बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आई थिंक 1/2, ठीक है। तो देख लेना कैलकुलेशन, आई होप मैंने सही किया, तो ये तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एवेल्युएट करना है, चलो इसको सॉल्व लाइक ओके, एनीवे लेट्स डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो व्हाट विल डू, दिस इज x टू द पावर b माइनस सी, x टू द पावर a माइनस सी, b प्लस a, ओके। तो अगर देखो एक काम करते हैं हम इसमें, x को मैं ऊपर ले आता हूँ, दिस इज b माइनस सी, वाई, बिकॉज इन दोनों का साइन सेम है, ऊपर आएगा तो साइन डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो साइन रिवर्स होगा, तो c कैंसिल हो जाएगा, बाहर b प्लस a है, अंदर आई थिंक b माइनस a हो जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा, दिस गेट कैंसिल, सो x टू द पावर b माइनस a, और बाहर तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन में होगा, अभी मैंने ये चीज बताई है रूल, तो b प्लस a हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखो ये माइनस बी प्लस ए ऊपर आएगा, सो दिस विल गेट कैंसिल्ड, और सी माइनस बी, सो सी माइनस बी एंड सी प्लस बी तुम्हारा बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसमें माइनस सी ऊपर आएगा प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो ए माइनस सी, ए प्लस सी। नाउ दिस इज बी स्क्वायर माइनस, and you can add the powers because base is same. In multiplication if base is same you can add the powers, so this is c square minus b square. मैं step skip कर रहा हूँ, I am supposing you understood this thing, a square minus c square, so now this get cancelled, this get cancelled, this get cancelled, and this is x to the power 0, so x to the power 0 we know that is 1, किसी भी अगर नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो लाइक ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर जितने लॉज देखे वो सारे इस एग्जांपल में कवर हो जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सर्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्ट। सर्ट बेसिकली तुम्हारा एक एग्जांपल में बता दूंगा, लाइक जैसे ये है ना, सर्ट्स आर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इरेशनल नंबर्स लाइक दिस। तो इरेशनल नंबर्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, नंबर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट आर द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, अगर किसी भी नंबर को तुम p/q फॉर्म में लिख सकते हो and q not equal to 0, then that number is rational number, and if there is any number that you cannot write in p/q form, that is irrational number। कोई भी रियल नंबर जो तुम्हारा रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, राइट। कोई भी रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा इरेशनल होगा। जैसे ही मैं रेशनल इरेशनल की बात करता हूँ, तुम्हारे माइंड में वो चार्ट, वो ग्राफ आना चाहिए जो मैंने नंबर्स में तुम्हें बनवाया था। यू मस्ट रिकॉल दैट चार्ट की रेशनल इरेशनल कहां पर आता है और कौन कौन से नंबर्स इरेशनल होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज इरेशनल। नाउ सर्ट्स देखते हैं। सर्ट्स क्या होते हैं तुम्हारे, बेसिकली इरेशनल होते हैं। जो नंबर तुम्हारा इस टाइप का लिखा हो, लाइक सपोज दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ इवन 2,
This is your cert, and in this is called the order of cert. This is here order of cert is 2. So like if you have any cert, if you have any number of this kind, so this is the order. This is the order of the cert. Fine. And this must be irrational. Like if you write this is not a cert because this is not irrational. This is rational. इसको bracket open करोगे, you'll get the 2. So this is your rational number. So this is not cert. For cert, like जो तुम्हारा number वो इस type का होना चाहिए, and that number must be irrational. So irrational roots of a rational number are called certs. ये तुम्हें confusing word लग सकता है, sentence लग सकता है, तो इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Just understand कि certs तुम्हारे क्या होते हैं. जो भी irrational हो, है ना, जो irrational terms हो तुम्हारे, उनको हम certs बोलेंगे. Like root 2, root 3, root 5, root 6, root 7. These you cannot represent like p by q form. So that's why these are irrational and these are certs. ओके, तो जब भी तुम्हारी पावर ऐसी होगी, एंड यहाँ पर सबका ऑर्डर देखो 2, सबका लाइक सपोज अगर तुम्हारे पास कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है, इफ देर इज नो टर्म मेंशन, अगर यहाँ पर कोई टर्म मेंशन नहीं है लाइक, तो वो स्क्वायर रूट होगा. अगर कुछ मेंशन है तो वो होगा लाइक दिस इज क्यूब रूट एंड दिस इज फोर्थ रूट. बट अगर ये कुछ मेंशन नहीं है तो वो स्क्वायर रूट होगा. ठीक है, ये चीज याद रखना. अगर मेंशन नहीं है तो वो स्क्वायर रूट होगा, अगर मेंशन है तो लाइक अगर 4 मेंशन तो दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ 2. And this 4 is your order, this 2 is here your order. So there are 2 things. Order मैं तुम्हें बता दिया. Order क्या होता है? A by M, A is said to be, M is said to be the order. Similar and dissimilar sets. तो similar sets वो होते हैं जिनका बेस सेम होता है. जैसे ये देखो, इसका रूट 3 है, ये भी रूट 3, ये भी रूट 3. These are the similar. यहाँ पर देखो रूट 2 है, यहाँ पर रूट 3 है. These are the dissimilar sets. I hope this is clear. इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन समझने की कोशिश नहीं करनी है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि होते क्या है. ठीक है, और इनको डील कैसे करते हैं. ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स. ऑपरेशंस बेसिकली लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ देखते हैं. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस देखा था ना, तो सिमिलरली यहाँ पर भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो अगर सिमिलर सर्ट्स हैं then only you can perform addition or subtraction. अगर dissimilar है, you cannot perform operations of addition and subtraction. Like you can add root 3 plus 5 root 3. This will be 6 root 3. Subtract भी इसे कर सकते हो, तो this will be 4 root 3. But you cannot add these two. You cannot add root 3 and root 2. This cannot be added or subtracted because these are dissimilar indices. Surds, not indices. These are dissimilar surds. I hope this is clear. For multiplication, your rules will be same as we have used for indices, है ना. अगर बेस सेम है तुम्हारा, then you can add the powers. अगर बेस सेम नहीं है, you cannot perform any operation. और डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो वो डिफरेंस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा. अच्छा, जो जनरली हम डील करेंगे क्वेश्चन के साथ, वो इस फॉर्म के हो सकते हैं. इस फॉर्म के हो सकते हैं a प्लस रूट बी, और रूट a प्लस रूट बी फॉर्म के साथ. जो मैं क्वेश्चन अभी तक कैट में तुम्हारे आए हैं और आगे भी आएंगे, वो बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं होंगे, इसी काइंड ऑफ के क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो अगर कोई सर्ट तुम्हारा ऐसा है a प्लस रूट बी, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है. अगर तुम्हारा ऐसा दिया हुआ है, तो इसका हम एक चीज यूज करते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं. इसका एक अपोजिट, ये टर्म इस सर्ट के साथ एक और ये एग्जिस्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट. ठीक है, अगर a प्लस रूट बी लिखा हुआ है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस रूट बी होगा. अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज अगर मैं a प्लस रूट बी को a रूट माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई विल गेट a स्क्वायर माइनस बी. अब देखो दोनों रेशनल आ गए, तो जो एक सर्ट को रेशनलाइज कर दे उसको उसका कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अ सर्ट एंड इट्स कॉन्जुगेट विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर. तो यही मैं बता रहा हूं तुम्हें. तो जो एक सर्ट को प्रोडक्ट करने पर रेशनलाइज कर दे, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ दैट सर्ट. अगेन डेफिनेशन में बहुत नहीं जाना है, हमें समझना है सिर्फ कि ऐसे देखो, मैं जो तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा,
आई विल नॉट फोकस कि तुम थ्योरम का नाम याद रखो कि लाइक ये थेल्स थ्योरम, आई इवन डोंट नो व्हाट इज द थ्योरम नेम. आई विल बी टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व. लाइक ये तुम्हारा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि तुमसे कोई थ्योरम का नाम नहीं पूछेगा, ठीक है. विल फोकस, विल स्टिक टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. विल नॉट ट्राई टू रिमेंबर टर्म्स और थ्योरम्स. हाँ, बट वो टर्म्स पता हो, एग्जाम में ये मेंशन हो सकता है, एग्जाम में ये टर्म्स आ सकता है कि कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ट. सो यू मस्ट नो व्हाट इज कॉन्जुगेट, ठीक है. नाउ रेशनलाइजिंग द सर्ट्स. तो रेशनलाइज अभी मैंने बताया कि अब रेशनलाइज में कॉन्जुगेट का यूज होगा, है ना. अगर सर्ट्स को हमें रेशनलाइज करना है तो उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना होगा. नाउ व्हाट इज रेशनलाइजिंग? रेशनलाइजिंग क्यों करते हैं? रेशनलाइजिंग जस्ट वी यूज टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपलर. हमें अगर कुछ कैलकुलेशन करने हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट स्टेप विल बी रेशनलाइजिंग द सर्ट, ठीक है. पहला स्टेप हर बार ज्यादातर यही होगा कि पहले सर्ट्स को रेशनलाइज करो. अब देखो रेशनलाइज होता क्या है. अगर देखो कुछ ऐसा फॉर्म का दिया हुआ है, सपोज दिस इज रिटन, तो बेसिकली व्हाट वी वांट कि डिनोमिनेटर से तुम्हारा इरेशनल टर्म हट जाए, डिनोमिनेटर से हट जाए. दैट इज कॉल्ड अ लाइक रेशनलाइजेशन. हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो टर्म है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से इरेशनल टर्म्स हट जाए, डिनोमिनेटर में रेशनल टर्म आ जाए. तो अगर सपोज ये लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी, तो उसको अगर रेशनलाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना होगा. दिस विल गिव यू दिस. एंड अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में रेशनल टर्म्स आ गए. फाइन. सो दिस इज द रेशनलाइजिंग. तो बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है. तो लेट सिंप्लीफाई दिस थिंग. इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो स्टेप क्या होगा, 1/4 माइनस रूट 5. अब यहां पर क्या एक अच्छी चीज है कि ये दोनों कॉन्जुगेट है आपस में. सो वी डोंट नीड टू कि लाइक इसको मैं कॉन्जुगेट पहले करूं, इसको रेशनलाइज करूं. जस्ट टेक एलसीएम. अगर मैं दोनों को एलसीएम लूं तो ये होगा, एंड दिस विल बी हियर, this will be here. This is 2 root 5 and this is 4 square and minus 5. 4 square a square minus b square आएगा. आई होप ये फॉर्मूला सबको पता है. a square minus b square इक्वल्स टू a minus b इंटू a plus b. ये फॉर्मूला सबको पता है. 16 minus 5 that is 11. So this is 2 root 5 upon 11. हमें सिंप्लीफाई करना था, तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है. आई थिंक सही की है. ओके, सो दिस इज क्लियर. नाउ लेट सिंप्लीफाई दिस. अब यहाँ पर देखो दोनों के कॉन्जुगेट अलग होंगे, तो हमें अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा. पहले अलग अलग दोनों को डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करना होगा, देन न्यूमरेटर में कैलकुलेशन करना होगा. सो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, रूट 6 माइनस रूट 5. सो हियर विल राइट रूट 6 माइनस रूट 5. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई उससे डिफरेंस नहीं आएगा. दिस इज रूट 5 माइनस रूट 2 एंड दिस इज रूट 5 माइनस रूट 2. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई. दिस इज 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 एंड दिस इज ओके. जस्ट लेट मी फर्स्ट. सो दिस इज 5 माइनस 2 डेट इज 3, है ना. 3 आ जाएगा. 5 माइनस 2, 5 स्क्वायर माइनस रूट 2, रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, ये कितना 3 हो जाएगा. सिमिलरली दिस इज रूट 6 माइनस रूट 5 एंड यहाँ पर तुम्हारा रूट 6 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा. रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. सो दिस 3 गेट कैंसल्ड. सो दिस इज रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 6 माइनस रूट 5. So this get cancelled. So this is root 6 minus root 2. So this is your answer. I hope this is clear. Now how to find the square roots of surds. ये चेक करते हैं कि स्क्वायर सर्ट्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया. अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम डील करेंगे सर्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे रिलेटेड होंगे. तो अगर ये देखो इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ट ऑफ द टाइप, अगर सर्ट तुम्हारी इस टाइप की है, अगर उसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट इस फॉर्म का होगा. ठीक है.
टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यहाँ पर देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, देन हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम्हें आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है तो मतलब उसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर जैसे 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 है और इसका स्क्वायर 4 है, तो देखो ये स्क्वायर है ना। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब अगर सपोज हमें 4 दिया हुआ है तो मतलब हमें स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए देखो जो स्क्वायर होगा वो इस टर्म में होगा ही होगा, स्क्वायर को हम इस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एग्जांपल इससे देखते हैं, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एग्जांपल से तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट ये मैं जो थ्योरी रिटर्न है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एग्जांपल से तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ये तुम्हें सर्ट दिया हो, एक्सप्रेस द गिवन सर्ट इन दिस फॉर्म। पहले तो इसको क्या करना है, हमें ऐसा बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या करेंगे हम, a प्लस रूट बी है तो रूट बी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सो आई विल राइट, मे भी तुम्हें यहां पर ना समझ में, आई एम गोना एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, आगे एग्जांपल करेंगे क्लियरिटी आ जाएगी पूरी, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट तुम्हें निकालना है, इसका स्क्वायर रूट इसके इक्वल होगा। सो नाउ दिस इज a प्लस 2c इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू ये हो जाएगी और रूट एक्स वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। नाउ इसको एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज 12। आई होप लाइक आई डोंट नो ये कितना समझ में आए, बट ये एग्जाम्पल्स अभी समझ में आ जाएगा। बट तुम्हें ये समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स का निकालना होता है, हमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, इससे तुम्हें क्लियरिटी आएगी कि हाँ कैसे करना है। तो पहला स्टेप देखो क्या था, अगर तुम्हें ये दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन 12 प्लस रूट 128, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, a प्लस रूट बी अगर दिया हुआ तो फर्स्ट स्टेप था a प्लस 2 रूट से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो हमें क्या करना है, यहां से 2 बाहर निकालना है, वी हैव टू ब्रिंग आउट 2, तो डेट इज 2 एंड कितना 32 आ जाएगा ना, 32 आ जाएगा, 4 से करें, ठीक है, ये आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म का होगा। स्क्वायर रूट इसका इस फॉर्म का होगा, देखो यहाँ पर ये स्टेप लिखा होगा, ये स्टेप। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि स्टेप वगैरह यूज कर रहे हैं, बट वंस यू अंडरस्टूड, एक बार कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल नॉट नीड दिस स्टेप, यू विल सॉल्व दिस ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग कि तुम कैसे कर रहे हो। फाइन, सो दिस इज रूट एक्स प्लस वाई। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, नाउ लेट्स स्क्वायर बोथ साइड, सो दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई, एंड दिस इज लाइक ये स्क्वायर रूट था ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो इसका स्क्वायर करोगे, दिस इज 2 रूट 32। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड एक्स वाई, जस्ट कंपेयर बोथ द साइड्स, दोनों साइड कंपेयर कर लें अगर हम, so this is 32. So you have to think of such number. इसको सॉल्व कर सकते हो, टू अननोन्स एंड टू वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस, वी कैन इजिली सॉल्व इट। सो दिस इज 8 एंड 4 है ना, अगर हम सोचे 8 और 4 है, अगर इसको 8 कर दो डेट इज 12, इसको 8 4 कर दो डेट इज 32। सो एक्स और वाई, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज 8 एंड दिस इज 4, सो रूट 8 प्लस रूट प्लस 2 इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज रूट 2 प्लस 2, रूट 8 प्लस 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। जस्ट तुम्हें ये सोचना है, अब मैं तुम्हें लाइक ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करे, डायरेक्टली कैसे करोगे। 128 है, अब सोचना कैसे होता है ना, अगर लाइक नॉर्मल दिया है तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर बहुत कॉम्प्लिकेट दिया है देन वी हैव टू यूज दिस थिंग, देन ये स्टेप से ही सॉल्व होगा। बट अगर ऐसा दिया हुआ तो इसको हम ऐसे सोच भी सकते हैं, कैसे, वी हैव टू थिंक कि लाइक इसको पहले मैंने 2 बाहर निकाला, ये तो पहला स्टेप आया। अब तुम्हें सोचना है कि यार ऐसा कौन सा नंबर है इसको किसके स्क्वायर का सम आ जाए, इसके स्क्वायर का सम आ जाए। तो 8 4, अगर मैं इसको रूट 8 और रूट 4 में ब्रेक कर दूं, रूट 8 और रूट 4 में ब्रेक कर दूं और इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, फिर ऐड करूं तो 12 आ जाएगा, तो डेट इज 4 प्लस 8, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर है और इसका हमें बेसिकली स्क्वायर रूट निकालना है।
So this is root 4 plus root 8. I hope this is clear. Let's see one more example. Suppose इसका फाइंड करना है, तो पहला स्टेप क्या होता है, 2 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लियो, 2 को अलग कर लियो. नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है, एंड दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म का होगा. नाउ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड. So this is 2 3 root and x plus y plus 2 root xy. So x plus y equals to 14 and your xy equals to xy कितना है 3 root 5. Now अब इसको सॉल्व करूं. So if I take 3 into 5, अगर मैं 3 into 5 लेता हूं, दिस इज 3 into 5 है ना. एक्स वाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा, रूट एक्स वाई का, एक मिनट, रूट एक्स वाई है ना, रूट एक्स वाई. तो इसको मुझे इसको लाइक अंदर ले जाना होगा ना, रूट के अंदर ले जाना होगा. तो 945 होगा, तो ये 45 होगा. इज इट क्लियर? देखो क्या हो रहा है, रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 3 रूट 5 है ना. तो एक्स वाई की वैल्यू स्क्वायर करोगे, 9 into 5 होगा, तो 45 होगा, तो 45 आएगा. अब टू इक्वेशन, 2 वेरिएबल, वी कैन सॉल्व इट. सो 9 5 जा 45, बिकॉज ये ऐसे नंबर्स ही हैं कि आसानी से हो जाएंगे, है ना. तो दिस इज रूट 9 प्लस रूट 5 इज योर आंसर. So that is root 3 plus root 5 is your answer for this question. I hope this is clear. अब निकाल लोगे. अगर वैसे नॉर्मली जब एक बार प्रोसेस कर लोगे, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देन तुम इजिली सॉल्व करोगे. अब मैं इसको कैसे करता, आई विल नॉट थिंक ऑफ कि ये इक्वेशन बनती है, इससे स्क्वायर रूट निकालते. आई विल जस्ट थिंक कि 14 है एंड आई विल ट्राई टू ब्रेक दिस. इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा कि इसके स्क्वायर का सम देखो ये आ रहा है 9 5 14 आ रहा है. सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. ओके, अब इसको रिवर्स करके भी देख लो. इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट है. तो 9 plus 5 14, 2 into 3 6 root 5. ओके, दिस इज योर होमवर्क. इसको सॉल्व करना, ठीक है. चलो इसको कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व इट. 28. अब मैं इसको जल्दी से करूंगा, आई विल नॉट मेक इक्वेशंस, ठीक है. नाउ आई विल नॉट मेक इक्वेशंस. तो बेसिकली इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसका स्क्वायर रूट देखो मैं कैसे निकालूं, जस्ट फोकस इस पे करो, जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं 25 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करूं 3 आएगा, 25 3 28 हो जाएगा, और माइनस साइन है. सो दिस मीन्स दिस इज 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3. वेरीफाई कर लो, यही आएगा. 25 plus 3 28 माइनस 10 रूट 3, ठीक है. अब ये ऐसे है, अपॉन में 7 plus 4 रूट 3 पावर 1/2. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. 7 plus 4 रूट 3, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो फर्स्ट ब्रेक करो इसको, 2 2 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी सिंपल सा है, ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है. तो दिस इज 2 plus रूट 3, दिस इज 2 plus रूट 3. तो इसको मैं डायरेक्टली 2 plus रूट 3 लिख सकता हूँ. स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, बिकॉज स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कि मैंने उसका स्क्वायर रूट ही यहाँ पर लिख दिया. तो अब कैलकुलेशन करने के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा. इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट टर्म से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 2 माइनस रूट 3 एंड दिस इज 4 minus 3, so that is 1. Now this is 5 minus root 3 minus plus, this get cancelled, 5 minus 2, that is 3. So 3 is the right answer, that is the 5th option. I hope this is clear. स्टार्टिंग में तुम इक्वेशन बना के करो ऐसे जैसे इसमें एक्सप्लेन है, सो डैट अगर कोई डिफिकल्टी भी आता है देन यू विल बी एबल टू डील. बट नॉर्मली ऐसे करना है, लाइक जब कुछ डिफिकल्ट आ जाता है जिसका ऐसे टर्म इजिली टर्म नहीं मिलते, देखो यहाँ पर तो इजिली टर्म्स मिल रहे हैं,
जब इजिली नहीं मिलेंगे तब तुम्हें इक्वेशन बना के ही करना पड़ेगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। इसमें मैं बता देता हूँ करना क्या है। पहले इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक का 5 माइनस रूट ये है, तो इसको देखो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 तो रूट 3 माइनस 2, इसका ये स्क्वायर रूट हो गया, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसके प्लेस पे ये आ जाएगा। देन रेशनलाइज करना हो रेशनलाइज कर लेना, अदरवाइज डायरेक्टली ऐड हो रहा हो तो डायरेक्टली ऐड कर देना। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है इसका, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। सो पहले तुम्हें ये सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, देन यहाँ पर आएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। तो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है। लेट मी नो योर आंसर्स विद द स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर के साथ मुझे कमेंट में अपना आंसर बताना, इसमें ऑप्शन नंबर और इसमें तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा हो विद स्लाइड नंबर। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द कंपैरिजन ऑफ सेट्स। तुम्हारा एक और टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड सेट्स और इंडिसेस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, सो दैट यू विल फाइंड इन दिस प्लेलिस्ट इटसेल्फ। जो ये अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है उसमें तुम्हें मिल जाएगा, तो वो भी तुम चेक कर सकते हो रिसेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं इससे। ओके, सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेट्स। जो भी वीडियो वगैरह मैं अपलोड करूंगा, जो भी मुझे शेयर करना होगा कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ, दैट यू विल गेट इन द ग्रुप एज वेल एज चैनल। Subscribe to this channel, YouTube channel. I hope you have liked the video, and you can join Facebook group as well. So that's it for today. Let's see you in the next session.